brutal Kolkata rape and murder case of a young doctor has clearly sent shockwaves, specifically for the mind-numbing details that have come in after the postmortem. This 31-year-old trainee doctor was raped and murdered while she was on duty at the RG Kar Medical Hospital in Kolkata. The horrific incident has led to massive protests as well. Bengal Chief Minister Mamata Banerjee has now given out a recent statement saying the state would hand over the case to CBI, as is being demanded by some of the protesters, if Kolkata police fails to crack the case by Sunday. She's also said that the state will fast-track the case in the court, push for death penalty if the need arises. Doctors are protesting pan-India, meanwhile, halting medical services across the country, except emergency services in this case. Protesting junior doctors are also demanding CBI probe, compensation for the victim's family, a publication of what is the progress report has been by Bengal authorities. Meanwhile, amid outrage and demands, the principal of the RG Kar Medical College and Hospital has resigned. 4 doctors of RG Kar Hospital have also been summoned, meanwhile, by the Kolkata police because they were on night duty and to understand what precisely could have been the chain trail. Sources say that these doctors perhaps could be able to give out further information about the doctor who was raped and murdered. হেড অফ দ্য ডিপার্টমেন্ট যে চেস ডিপার্টমেন্ট তাকেও সরিয়ে দিয়েছে এবং পুলিশ পোস্টে যে এসিপি ছিলেন তাকেও সরিয়ে দিয়েছে সবাইকেই সরানো হয়েছে এবং আমি চাই পুলিশ যত তাড়াতাড়ি সম্ভব দোষীদের গ্রেফতার করবে আর রবিবার পর্যন্ত যদি তারা কোন কিনারা করতে না পারেন কারণ ভেতরেও তো অনেকে আছে তাহলে এই কেসটা আমরা আমাদের হাতে রাখবো না আমরা সিবিআই কে দিয়ে দেব। ममता जी, आपके राज में बंगाल में क्या हो रहा है? एक महिला डॉक्टर के साथ बलात्कार किया गया, दरिंदगी की हद कर दी गई। हमारा आरोप है कि कुछ टीएमसी के समर्थकों को भी डाल दिया गया उस कमेटी में। ममता जी, आपकी सरकार में तो विपक्ष को जो होता है हम जानते ही हैं, चुनाव में तो होता है जानते ही हैं। मैं कई बार आपसे बात कर चुका हूं। क्या वहां की डॉक्टर बेटियों के साथ बदसलूकी पर भी ये कहा जाएगा? Junior doctors and resident doctors continue to protest and continue to cease work, and what we can see at Kolkata's RG Kar Medical College Hospital's outdoor department, a huge queue of patients. Those have arrived this morning. Remember, today is a Monday, and usually people get over here for treatment from very far of the state, and what we can see, huge crowd at the doorstep of OPD counters here at RG Kar Medical College Hospital. They allege that no doctors and particularly the ticket counters remain closed amid a situation when all doctors, resident doctors and particularly junior doctors are protesting over demanding justice over the chilling and horror killing of a junior doctor at Kolkata State Run Hospital. It seems the situation is remain unchanged, and it will gonna affect the easy medical facilities at state run hospitals across the state. With camera person, so हमारे साथ हैं केंद्रीय मंत्री और बंगाल बीजेपी अध्यक्ष सुकांता मुजुमदार जी। सर, जिस तरह की घटना बंगाल में आई है, इसमें काफी लैप्सेस भी निकल के सामने आए हैं। अब जो प्रिंसिपल है उन्होंने भी इस्तीफा दिया है। इस पूरे प्रकरण को, इस पूरे मामले को आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, पूरे प्रकरण जो हुआ है ये अभी तक मुझे लगता है ये पूरा डाउट है हमें, क्योंकि पुलिस की निष्पक्षता पर हमें कोई ये नहीं है, कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि पुलिस ने बहुत सारे काम ऐसे किए हैं जो नहीं करना चाहिए थे। एज ए पुलिस ऑफिशियल्स ऐसे नहीं करना चाहिए था। एक तो पहले पुलिस ने गार्जियन को फोन करके बताया कि योर डॉटर हैज कमिटेड सुसाइड, तो इसको सुसाइड बोल रहे थे। अब बोल रहे हैं कि मर्डर है। अब मर्डर में जिसको एक्यूज को पकड़ा गया वो खुद सिविक वॉलंटियर है जो पुलिस के साथ काम करती है। तो एक सिविक वॉलंटियर जो पुलिस का ही पार्ट है, तो पुलिस इन्वेस्टिगेशन नहीं कर पाएगी। अभी ये प्रिंसिपल ने भी इस्तीफा दे दिया है। प्रिंसिपल के खिलाफ मैंने बहुत पहले 6-7 महीने पहले मैंने गवर्नर साहब को भी चिट्ठी दी थी कि जो है ये जो प्रिंसिपल है एक करप्शन में डूबी हुई है, और लेकिन टीएमसी के लीडर होने के कारण, टीएमसी के बहुत क्लोज होने के कारण, ममता बनर्जी के क्लोज होने के कारण इस प्रिंसिपल को हटाया नहीं जाता था।
कुछ साल पहले हटाया भी गया था, कुछ महीने बाद फिर वापस लाया गया। तो ये स्थिति है। पुलिस निरपेक्ष जांच नहीं कर पा रही है। मुझे लगता है इमीडिएट सीबीआई को हैंड ओवर करना चाहिए। अगर ज्यादा देर हो गई तो सुब्रतों के साथ छेड़छाड़ होगा। मुझे लगता है ममता बनर्जी की मनीषा वही है कि टाइम किल करो, सुब्रतों के साथ छेड़छाड़ करो और उसके बाद सीबीआई को इन्वेस्टिगेशन आप सौंप भी देंगे तो सीबीआई को कुछ सबूत नहीं मिलेगा। वो यही कह रहे हैं कि अगर बंगाल पुलिस नहीं कर पाती इसमें जांच बेहतर तरीके से तो वो सीबीआई को फिर इसको सौंप देंगे। देखिए मुझे लगता है इट इज हर माइंडसेट टू किल द टाइम को वो ये करने के लिए कोशिश कर रही है, क्योंकि आप जानते हैं एविडेंसेस, स्पेशली ऐसे जो केसेस होते हैं उसमें जो सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस होते हैं, जो वहाँ पे जहाँ पे कमिटेड हुआ है, जहाँ पे क्राइम वहाँ पे कमिट हुआ है, वहाँ से जो सबूत मिलते हैं, वो सबूत जो बायोलॉजिकल रिमेन्स मिलते हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर टू इन्वेस्टिगेट द आइडेंटिटी ऑफ द क्रिमिनल। डीएनए टेस्टिंग वगैरह होते हैं, आप जानते हैं। लेकिन जब देरी होगा, समय किल होगा, इसके साथ साथ इन सारे सबूतों में कमी आएगी, सबूतों के साथ छेड़छाड़ होने की संभावनाएं है। आप खुद एक डॉक्टर हैं, उन सभी प्रोटेस्टिंग जो डॉक्टर्स हैं देश भर में हम देख रहे हैं कैसे धरना हो रहा है, उन सबको आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हम मोरली उनके साथ खड़े हुए हैं। हम चाहते हैं कि इसका इन्वेस्टिगेशन हो और ऐसी घटना बंगाल में आप ममता बनर्जी क्लेम करती है कि बंगाल या कलकत्ता इज द सेफेस्ट सिटी फॉर द वुमेन, तो आप एनसीआरबी को डेटा नहीं भेजेंगे और एक क्लेम करेंगे, इससे काम नहीं होगा। एक के बाद एक घटना पश्चिम बंगाल में घट रही है और इस बार तो कलकत्ता में हमारे कैपिटल में और उसके अंदर सरकारी प्रेमिसेस के अंदर आरजी कर जहाँ पे है वो कलकत्ता का मेन पार्ट है, हार्ट ऑफ द कलकत्ता जिसे बोलते हैं। वहां पे एक सरकारी प्रेमिसेस में एक सरकारी डॉक्टर ऑन ड्यूटी रहते हुए घटना घट गई। मुझे तो लास्ट 15 साल में ऐसा कोई मतलब ये तीनों कॉम्बिनेशन कि आप स्टेट कैपिटल में और सरकारी हॉस्पिटल के अंदर ऑन ड्यूटी रहते हुए किसी भी महिला डॉक्टर के साथ ऐसी घिनौना काम कहीं पे हुआ है, ऐसा मेरे ध्यान में तो नहीं आ रहा है, आपके भी ध्यान में शायद नहीं आएगा। और ये बहुत हीनियस क्राइम है और इसके खिलाफ हमें सब मिलकर, मैं तो पहले भी बोल चुका हूं कि सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए। मैं सारे स्टूडेंट, डॉक्टर्स नहीं, सारे स्टूडेंट्स को रास्ते पे उतरने के लिए मैं बोल रहा हूं कि उतरना चाहिए। सरकार के खिलाफ हमें आवाज बढ़ानी चाहिए और आने वाले कल से मतलब टुमारो से हम वहाँ पे डेमोन्स्ट्रेशन भी शुरू कर रहे हैं, डिमांड फॉर द सीबीआई। आप धरने की बात कर रहे हैं, एक आखिरी प्रश्न मिलूंगा। Amid this political showdown, there are protests that continue there in Kolkata and across the country. Different states are reporting these protests that have broken out. Rajesh Saha, meanwhile, is in Kolkata, right outside the Bengal Health Department. Rajesh, you tell me. There has been an arrest in this case, and yet there are protesters on the ground. What are their demands? What do they expect? Rajesh, if you can hear me, what are these protesters demanding now? It must be concerning to them. Many of them would have known this young doctor personally as well, to be working at a hospital which is supposed to be the safest space, and yet it happens that the doctor on duty gets raped and murdered. Well, exactly at this moment, I'm present at RG Kar Hospital and Medical College in Kolkata, and you can see all the students, all the interns, junior doctors have joined in the protest. And today is the fourth day the protest is being continued, and they have announced a protest across the state in protest of this heinous crime. Right now, one of the student leaders has joined with us to talk regarding this matter. अभी तो प्रदर्शन जारी है, कब तक चलेगी ये प्रदर्शन? जब तक हमारी पहली मांग जो है, जो एक्यूज्ड को प्रॉपर एविडेंस के साथ पकड़ना होगा, जुडिशियरी इंक्वायरी करके उसके बाद उसका एग्जाम्पलरी पनिशमेंट देना होगा, ये हमारी पहली मांग। ये मांग जब तक पूरी नहीं होगा ये सीज वर्क चलेगा और हम लोग पैन इंडिया सबको इस मूवमेंट के शामिल होने का आह्वान जाना रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है। मेडिकल, नॉन मेडिकल, सिविल सोसाइटी सब लोग हमारे पास आइए, हमारा मूवमेंट का साथ। क्या अभी इमरजेंसी सर्विस भी बंद है? इस कॉलेज में इमरजेंसी सर्विस बंद है, कुछ कॉलेज में इमरजेंसी सर्विस चल रहा है, मगर उस कॉलेज के साथ हम लोगों का
कांटेक्ट हो रहा है, वो बोल रहा है। अगर अभी कोई इमरजेंसी पेशेंट आए, सोचिए किसी का स्ट्रोक हो गया, तो अब उनका क्या होगा? देखिए, इमरजेंसी बंद है मतलब हम लोग इमरजेंसी में नहीं है, मगर हमारा कुछ सर, कुछ डॉक्टर, सीनियर डॉक्टर, ये मूवमेंट जूनियर डॉक्टर का है, तो जो सीनियर डॉक्टर है वो लोग ट्रीटमेंट कर रहा है, आपका जो प्रिंसिपल थे वो भी रिजाइन कर दिया, एक एक्यूज भी गिरफ्तार हुआ है, कोलकाता पुलिस ने गिरफ्तार किया। अभी क्या आप लोगों का फेथ है, अभी मतलब भरोसा है कोलकाता पुलिस में? हम लोग मीडिया से पता चला है कि हमारे प्रिंसिपल रिजिग्नेशन कर रहा है, मगर उसका कोई रिटन एपोलॉजी लेटर और रिटन रेजिग्नेशन लेटर हमारे पास नहीं आए। ठीक है, ये हमारा एक मांग था। हम लोग ये करते हैं कि हमारा जो ये आंदोलन है इसका प्रेशर में आके ये अथॉरिटी रिजाइन करने में बाध्य होता है, मगर हमारा पास कोई रिटन डॉक्यूमेंट्स नहीं है। ये आने के बाद हम लोग विश्वास करेंगे हाँ ये एक्चुअली में हुआ है। आपको लगता है संजय रॉय के अलावा और कोई भी इसमें इन्वॉल्व थे? देखिए, ये बात तो पुलिस को बताना चाहिए ना, पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, तो हो सकता है, मगर जो भी है, एक आदमी है, 2 आदमी है, 3 आदमी है, ये पुलिस को सामने आना पड़ेगा। इतना देर क्यों हो रहा है ये तो हम लोगों को पता नहीं चल रहा है। 48 आवर्स ओवर हो गया, फिर भी कोई अच्छा सा डॉक्यूमेंट्स नहीं आया, अच्छा कोई प्रमाण नहीं आया हमारे साथ, यही बता रहे हैं। All right, so these protests that are presently on, remember the doctors have put forth certain demands. They are not convinced just with the arrest. They believe there could be more behind this rape and murder case. They want an overall review for the protection of doctors and more statements coming in. While you see these visuals coming in from different parts of the country, remember whether it's Delhi, JNK, Chandigarh including, there are protests that have broken out. Let's take a look at this report. Why is the demand for CBI and what precisely are the doctors saying at this point? ये सफदरजंग हॉस्पिटल है, देश का सबसे बड़ा हॉस्पिटल अगर कहा जाए इसको माना जाता है, और तकरीबन अगर आप दूर दूर तक देखेंगे तकरीबन 2000 के आसपास तमाम जो रेजिडेंट डॉक्टर है वो इस वक्त हड़ताल पर चले गए हैं। सीधे तौर पर इसका इम्पैक्ट जो है वो उन तमाम मरीजों पर पड़ेगा जो यहाँ पर इलाज कराने के लिए आते हैं, लेकिन इमरजेंसी सेवा चालू है, लेकिन ओपीडी के अंदर तमाम डॉक्टर्स की जो सेवा है वो बंद है। यहाँ पर तमाम जो डॉक्टर्स है वो लगातार वी वांट जस्टिस के यहाँ पर तमाम जो नारे हैं वो लगते हुए नजर आ रहे हैं, और आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से बड़ा एजुकेशन दिल्ली के अलग अलग अस्पतालों में इस वक्त जो है वो देखने को मिल रहा है, चाहे वो आरएमएल हो, सफदरजंग हो, जीटीबी हो, तमाम अस्पतालों के अंदर इस तरीके के जो एजुकेशन है वो फिलहाल इस वक्त तेजी के साथ देखने को मिल रहा है। कई सारे डॉक्टर्स हैं, उनसे हम बातचीत जो है वो करेंगे। लगातार आप लोगों का प्रदर्शन जारी, कब तक और क्या क्या मांगे? हमारी मांग है कि हम सारे डॉक्टर्स के लिए सिक्योरिटी चाहिए, दूसरों की जान बचाते हम अपनी जान खतरे पे नहीं डाल सकते। आप क्या क्या मांग करते हैं? हमारी 5-6 डिमांड्स है। बेसिक कि सीबीआई इंक्वायरी हो, सेकंड थिंग एक सिक्योरिटी बढ़ाई जाए, सीसीटीवी बढ़ाई जाए, एंड डॉक्टरों की सिक्योरिटी और बढ़ाई जाए। मेन हमारी डिमांड यही है। 3 दिन से वहाँ पे पहले तो कोशिश किए थे सुसाइड करके, और बाद में बोले थे पोस्टमार्टम के पता चला शी वॉज ब्रूटली मर्डर्ड एंड रेप। वहाँ के जो जितने भी रेसिडेंट्स है अलॉन्ग विद अदर कॉलेज स्टूडेंट्स ऑफ वेस्ट बंगाल सब प्रोटेस्ट पे बैठे हुए हैं, क्योंकि उनको जस्टिस चाहिए। जो उनका डिमांड जो है उनका सीबीआई इंक्वायरी के लिए, क्योंकि वहाँ पे जो अभी इन्वेस्टिगेशन जो चल रहा है वो सही तरीके से नहीं चल रहा है, एंड दे डिमांड सीबीआई इंक्वायरी। पहली बात तो ट्रांसपेरेंसी एंड सीबीआई इंक्वायरी ऑफ दैट। जो जांच चल रही है वो पूरी तरीके से सेफ है, पूरी तरीके से हमें नहीं पता बायस है अनबायस है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। ट्रांसपेरेंसी एंड फास्ट ट्रैक, ये मैटर को जितना जल्दी आगे लिया जाए उतना बेटर रहेगा, नहीं तो धीरे धीरे ये भी ऐसे फेड अवे हो जाएगा जैसे बाकी सारे हो जाते हैं। पहली चीज ये है। दूसरी चीज ये है कि नेशन वाइड हॉस्पिटल्स में सिक्योरिटी होनी चाहिए। बेसिक डिमांड्स है हमारी। 24 आवर्स 36 आवर्स की शिफ्ट होती है हमारी, रात को ड्यूटी करते हैं हम सिक्योरिटी तो मांग रहे हैं, और क्या बोला है हमने इससे ज्यादा।